video, we will discuss about the Nelson method, which is used for the determination of the Ka, which is the rate of absorption constant. So the rate of absorption constant can be determined with the help of Wigner-Nelson method. This method is useful for the determination of total amount of drug from time 0 to infinity. With the help of this method, we can easily determine the fraction of drug absorbed at any time. With the help of this method, we can determine the percentage amount of drug remaining to be absorbed, which is indicated by the percentage ARA. So, what is the use of this method? This method is basically used for the estimation of Ka, which is called rate of absorption constant. One of the most important thing यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हमने rate of absorption constant K determine करना है, we will not assume कि ये first order है या zero order. हमें assume नहीं करना. We will directly determine the Ka with the help of graph. The graph will be between the percentage drug unabsorbed and the time. With the help of this graph, we can easily determine the Ka. So you can easily see that with the help of Wigner-Nelson method, we can determine the total amount of drug from time 0 to infinity, fraction of drug absorbed at any time, percentage ARA. Okay. So suppose we have the XA that indicate the amount of drug absorbed into systemic circulation. Then we have a X which indicate the amount of drug in the body. Then we have a XE, that XE indicate the amount of drug eliminated. So the equation will be XA is equal to X plus XE. ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो x है दैट x इज इक्वल टू VDC वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसंट्रेशन एंड XC विच इज कॉल्ड ड्रग एलिमिनेटेड वो इक्वल होता है KEVD एरिया अंडर कर्व लिमिट ऑफ टाइम 0. ओके हमारे पास ये इक्वेशन आ गया था x इज इक्वल टू x प्लस XE एंड x जो कि इज इक्वल टू VDC एंड XC विच इज द ड्रग एलिमिनेटेड इज इक्वल टू KEVD एरिया अंडर कर्व लिमिट ऑफ टाइम 0. ओके So say suppose this is equation number 3, 2, 1. We will put the value of equation 3, 2 into the 1. तो जब हमने x का वैल्यू ये यहाँ पे पुट किया, XE का वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गया. So suppose this is equation number 4. So we have already discussed about that this method is used for the determination of total amount of drug from time 0 to infinity. How? So we will determine this. Okay. So say suppose the total amount of drug from time 0 to infinity. जब भी आपके पास टाइम इन्फिनिटी होगा तो कंसंट्रेशन जो कि इन्फिनिटी में था हो जाएगा या होगा उसका भी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द टाइम विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी द कंसंट्रेशन इन्फिनिटी विद आल्सो इक्वल टू 0. ओके सो इस वाले इक्वेशन को मैं इन्फिनिटी के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है तो सपोज एक्स इज इक्वल टू VDC इन्फिनिटी. ओके दिस VDC यहाँ पे 0 था मतलब 0 के हिसाब से था यहाँ पे इन्फिनिटी था. ठीक है इज प्लस KEVD एंड AUC यहाँ पे 0 जो टाइम था मतलब 0 से इन्फिनिटी में चले गए हम. जिस टाइम की जगह पे हमने क्या रखा इन्फिनिटी रख दिया. ओके जैसे कि मैंने कहा था कि जब आपके पास कंसंट्रेशन इन्फिनिटी में होगा तो आपके पास उसका जो वैल्यू आएगा 0 में आएगा. सो दिस इज 0 को जब हमने मल्टीप्लाई किया VDC के साथ ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा. सो x से इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा एंड KEVD यहाँ पे आ गया और ये वाला टर्मिनोलॉजी आपके पास यहाँ आ गया. ओके नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम. सो लेट्स डिटरमाइन हाउ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम. वी विल डिवाइड द इक्वेशन नंबर 4. ये वाला इक्वेशन नंबर जो 4 है इसको हम डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 तो हमें जो है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम मिल जाएगा. ओके now the third we have with the help of this method we can determine the percentage amount of drug remaining to be absorbed percentage ARA which is equal to 1 minus XA divided by XA infinity multiplied by 100. मतलब XA ये वाला ठीक है एंड XA infinity ये वाला तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें पास जो है ना परसेंटेज ARA मिल जाएगा. कैसे होता है लेट्स सी. ओके सो परसेंटेज ARA is equal to 1 minus XA divided by XA infinity multiplied by 100. So 1 minus the value of XA we have seen previously कि यहाँ पे ये था एंड X infinity का वैल्यू ये था तो इन दोनों को हम पुट करेंगे वहाँ पे देखते हैं क्या आता है. तो XA का जो वैल्यू था VDC इक्वेशन जो था VDC प्लस KEVD AUC ये आ गया यहाँ पे X infinity का यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे जो कॉमन टर्म है दैट इज VD वी विल टेक द VD कॉमन नीचे भी ऊपर भी. तो जब मैंने ऊपर VD कॉमन लिया तो ब्रैकेट VD मैंने यहाँ पे रख दिया ये वाला. ठीक है एंड ब्रैकेट बंद कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया
बाकी सब का सब सेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन वी हैव वी डी यहाँ पे नीचे एंड के ई यहाँ पे, ए यू सी यहाँ पे आ गया। सो वी डी कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव दी 1 माइनस सी प्लस के ई, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन इजीली डिटरमाइन द परसेंटेज ए आ गए। ओके, नाउ दिस मेथड, इस मेथड के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली डिटरमाइन द परसेंटेज एब्जॉर्बेंट कांस्टेंट। सबसे पहले हमने ब्लड सैंपल लेना है, लेकिन लाजमी ये है कि वो जो ब्लड सैंपल आपका होना चाहिए उसमें सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेटेड होना चाहिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन डिटरमाइन दी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। जो ग्राफ बनेगा किसके बीच में बनेगा? ऑन वाई एक्सिस वी हैव द परसेंटेज AR एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव द टाइम। So the slope will be is equal to minus k divided by 2.303. This is called Wegener-Nielsen method.